ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਪਿੰਡ ਜੰਗਪੁਰਾ। ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਨਮਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, 20 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੜ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗੇ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਧੱਕੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੀ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ भी नहीं कर सकता। फिर सरकारें क्यों साढ़े कानून थोप रही हैं? भाजी ये जो MSP का मामला है इसके बारे में क्या कहना है? सरकार बोल रही कि MSP हम आपको देंगे। ਕੱਲੀ MSA ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੋੜਨੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋੜਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ? तो जब साडा सही चल रहा काम, साडा पहले तो ही सही चल रहा, हुण नवें सिरे क्यों? तो MSP ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ? ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੀ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ MSC ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ। ਮੱਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 1800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ 800 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ 800 ਕਿਉਂ? ਸੂਰਜਮੁਖੀ 3500 ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ 1700 ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਸਾਡੀ ਹੈ 4500 ਰੁਪਏ, ਸਾਡੀ 3000 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, 2800 ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਧ 'ਚ ਕਿਉਂ? तो MSP आप चाहते हैं सब लोग कि MSP सारे अनाजों पर ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੀਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਘੱਟ ਖਰੀਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਗਿੱਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਘੱਟ 'ਚ ਰੇਟ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲੇ ਜਾਓ, 10 ਰੁਪਏ 20 50 ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਲੈ? ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦਬਾਣ ਆਈ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਦਬਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿੰਨੀ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਟਰਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਖੜੇ ਹੀ ਖੜਿਆ ਸਿਰੇ ਤੱਕ। 20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅੱਜ। सरकार ने जैसा कल बोला है कि आप सब लोग अपनी एक यूनिटी बना के जो 4-5 बंदे हैं जो मेन आपने जिसको चुनाव करना उसका चुनाव करके 5 लोग आ जाएं सरकार के साथ में बातचीत करने के लिए, तो इस पे कुछ हुआ अभी तक? 5 लोगों का मतलब ही क्यों है? 5 क्यों भाई? 20 ਲੱਖ ਬੰਦੇ में 5 ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਆ? ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਐਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 400 ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। 5 ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ 20 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਗੇ? 5 ਬੰਦੇ ਕਰ ਲੈਂਗੇ। वो तो ਤੁਸੀਂ VOTING ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। तो कितने लोग ਤੁਸੀਂ चाहते हो कि वहाँ पर मतलब बोर्ड 36 बंदे चाहते हो कि 36 बंदे वहाँ पे जाएंगे 36। तो उसके बाद ही कोई बातचीत वही करेंगे गल। जो सरकार ने अभी आपको बोला, आप सभी लोगों से अनुरोध भी किया है कि आप लोग बुराड़ी आके बैठे, इसके बारे में क्या कहें? बराड़ी हमें क्यों जाए? हम रोड रोकेंगे, सारे पासे बंद करेंगे दिल्ली के। बराड़ी हम एक साइड में क्यों बैठे? 16 किलोमीटर जाके तक बंद पे, 20 किलोमीटर तक आपने देखा ही है जब तक हुआ। फिर आप साइड में क्यों बैठेंगे? साइड में बैठने आए यहाँ, हम रोकने के लिए आए हैं। सारे पासा बंद करेंगे यहाँ, चारे पासा। तो मतलब जब तक आपकी मतलब किसानों की मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, जब तक मतलब यहाँ से हटने का नहीं जाएंगे, नहीं हटेंगे, तैयार नहीं है। मेरा नाम है जी तेजवीर सिंह, मैं अम्बाड़ा से हूँ, जहाँ पे कल अनिल विज होम मिनिस्टर का विरोध हुआ था। जहाँ पे उनको काले झंडे दिखाए गए थे। जो अपने आप को गब्बर को हता है, हमने उसको काले झंडे दिखवाए कल। मैं आपको बताता हूँ हम बराड़ी क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमारी ये कॉल नहीं थी कि हम किसी भी ग्राउंड में जाएंगे। हमने ग्राउंड मांगा था जंतर मंतर या रामलीला, वो उन्होंने उससे मना कर दिया। अब मैं आपको एक घटना बताता हूँ। वहाँ पे BM सिंह जी बैठे हैं जो यूपी से अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। क्या उनको कल वहाँ पे बुलाया गया? उनको बुलाया नहीं गया जब मीटिंग होनी थी अमित शाह के साथ, राजनीति और पीयूष गोयल के साथ। ये आपको एक संदेश है कि वो उसको ओपन जेल बनाना चाहते हैं, और हमने दिल्ली गहराव की कॉल की थी। अब दूसरी बात, एक गोदी मीडिया को स्पेशल हमारा मैसेज है। वो लोगों से पूछते हैं कि आपको आलू लगाना आता है जी, आपको गेहूं लगानी आती है, आपको धान लगानी आती है, आपको मिर्चें लगवानी आती हैं? मैं उनसे पूछता हूँ आपको खाना आता है? और आपको ये नहीं पता कि लगाना आता है नहीं आता है? अब ये आंदोलन जन आंदोलन हो चुका है। ये किसान का आंदोलन नहीं रहा, अब मजदूर का आंदोलन है, अब ये ड्राइवरों का आंदोलन है। अब ये डॉक्टर लिखता है अपने फेसबुक के ऊपर आई एम स्टैंड विद फार्मर्स, एक इंजीनियर लिखता है आई एम स्टैंड विद फार्मर, एक एडवोकेट लिखता है आई एम स्टैंड विद फार्मर्स। क्या एक पत्रकार नहीं लिख सकता आई एम स्टैंड विद फार्मर? बिल्कुल बिल्कुल लिखना चाहिए। हाँ, तो लिखना चाहिए ना। तो हम सीधा सीधा कह देते हैं जी न्यूज़ को, वो बोलते हैं कि हरियाणा से नहीं आए। हमारे खट्टर साहब बोल देते हैं, कहते हरियाणा से नहीं है। आपका विरोध सबसे पहले हरियाणा में हुआ। पिपली में अंदर हमने लाठियाँ खाई, हमने रोड जाम किया, हमारे ऊपर 302 के 307 के पर्चे हुए। मेरे भाई ने वाटर कैनन से छलांग लगाई, उनको चढ़ाया हमने था। तो ये पर्चे किसके ऊपर हो रहे हैं भाई? क्यों हो रहे हैं?
एक मिनट रुक जाओ। और दूसरी बात, ये बात बोल देते हैं अगर तो कोई सरदार विद्रोह करे सरकार, ये फंडामेंटल राइट है ना कि मैं किसी भी चीज़, हाँ हर किसी का, हाँ तो हाँ यस आई एम एग्री विद यू। तो आप सुनो, सबसे पहले ये बताओ कि अगर कोई सरदार विरोध कर देता है, वो सरकार के खिलाफ बोलता है, तो उसे बोल देते हैं कि वो खालिस्तानी है। अगर कोई हरियाणा से बोल देता है, कहते हैं ये तो जाट हैं, ये तो ऐसे झगड़ालू होते हैं जी। अगर कोई अर्बन से बोल देता है, कोई स्कॉलर बोल देता है, कोई प्रोफेसर बोल देता है, कोई नोबेल पुरस्कार अपना बोल देता है, जिसे पद्मश्री पद्म विभूषण मिला हुआ है, वो बोल देता है, कहते हैं ये तो अर्बन नक्सल है। अगर कोई आदिवासी विरोध करता है, वो तो है ही नक्सलवादी हैं। तो ये क्या हो रहा है सर कंट्री में? इनको धर्म की चाशनी चटाई जा रही है, जिसकी शरीर को लत लगी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो छोड़ नहीं सकता। इससे बहम भरम से बाहर निकलो। इसने चाय बेची, किसी ने देखी नहीं, देश पूरा बेच दिया, देख रहे हैं फिर भी चुप हैं। और दूसरी बात, जिस आदमी ने 35 साल मांग कर खाया, उसे क्या पता खेती का? एक भीख नंगे आदमी को जिसने मांग मांग कर खाया हो लोगों से, वो अपनी हर रोज़ स्टेटमेंट चेंज कर देता कि मैं बचपन में फौजी बनना चाहता था, संतों में चला गया था मैं संत बनना चाहता था, कॉलेज में चला गया मैं प्रोफेसर बनना चाहता था, एक दफ़ा नहीं बोला कि किसान बनना चाहता था। चलो ये सब बातें छोड़ो, हमारा देश कौन सा देश है? कृषि प्रधान देश है ना? बिल्कुल। आप सहमत हो इस बात से? बिल्कुल 200%। बिल्कुल। तो जो देश की आबादी की रेशो है आज़ादी के टाइम में 6% और 94% गाँव में, आज है जो 70-30 की रेशो है। तो क्या वो फार्मर नहीं है? बिल्कुल है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ रेट गिरा था 12%, 24% इंफ्रास्ट्रक्चर की जीडीपी की गिरी, लेकिन 3.5% हमने जीडीपी बढ़ा कर दी कोविड के दौरान। तो क्या वो फार्मर नहीं था? ये सीधा सीधा अंबानी और अडानी की सरकार है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी, जो ईस्ट से नहीं थी, वो यहीं के लोगों ने एक बनाई थी, अंग्रेज़ों के ऊपर थोपी गई थी हमारे। तो ऐसे ये अंबानी और अडानी को देना चाहते हैं। आपने कभी ऊपर पूरी उम्र के अंदर आपने 50 रुपये आलू खरीदा? कभी नहीं। तो ये हुआ कैसे? इसकी जिम्मेदार सरकार कैसे है? क्योंकि इन्होंने स्टॉक की सीमा ही ख़राब कर दी। पहले पिक्चरें बनती थी, काला पत्थर, काल बाजारी, ये रोटी कपड़ा और मकान, उसमें दिखाया जाता था कैसे एक धन्य सेठ वो अपनी कवर कर लेता था पूरे गांव के अनाज को और फिर अपने मनमाने रेटों पर बेचता था। मैं आपको एक बताता हूँ, ये बोल रहे हैं कि हम आपको कानून समझाएंगे। आप कौन होते हैं हमें कानून समझाने वाले? आपके पास क्या राइट है? आपने तो उम्र की डिग्री देखी है, वो किस डिग्री से है? और कृषि मंत्री बना दिया आपको, जो बिल्कुल जल्ला और पागल है। आपने बोला था कि हम 56 रैलियों के अंदर चीख कर कहा था पहली मीटिंग में कर्जा मुक्त होगा। एक बात बताओ, हम बिल माफ़ कराने आए ना यहाँ पे, लेकिन अब हम कर्जा मुक्ति लेकर जाएंगे। एक बोले सोनियाल सत श्री अकाल, इससे भी इनको तकलीफ है। एक नारा हम लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो मीडिया के माध्यम से देख लेना, हम खालिस्तानी नहीं, हम भारत को प्यार करने वाले लोग हैं। धन्यवाद। अगर आपकी आन शान या किसी मीडिया के खिलाफ आपको बात कुछ बुरी लगी हो तो उसके लिए समझ आते हैं।